Students of class 10th in information technology. Today I will explain web applications, and today's topic is internet and its components. You know very well what is internet, what are the various uses of internet. In today's life, internet is the most important factor in the life of students and in the life of professionals, businessmen. You all know that internet is a computer based worldwide information network. It can be assumed as an example of WAN. हम ये मान सकते हैं कि इंटरनेट वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, जो कि एक एग्जाम्पल है वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क का, जो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड है. इंटरनेट इज कंपोज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स. These networks may link tens, hundreds, or thousands of computers, enabling them to share information with each other and to share various sources such as powerful supercomputers and databases. इसमें हम बहुत सी चीज़ शेयर करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं. इंटरनेट हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इफेक्टिवली एंड इनएक्सपेंसिवली कम्युनिकेट विद ईच अदर. पूरे वर्ल्ड के लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं इसी इंटरनेट की वजह से. Unlike traditional broadcasting media such as radio and television, the internet is a decentralized system. Each connected individuals can communicate with anyone. Right now I will discuss about the various parts of internet. First of all, the most important part is World Wide Web, WWW. Most popularly it is known as web. World Wide Web was introduced in 1989 by Tim Berners-Lee. WWW is a set of programs, standards and protocols. Actually ये WWW set of standards है and protocols है, जिसमें कि बहुत सारे protocols को joint किया गया है, programs को, standards को जोड़ा गया है, जिसका कि basic work होता है in which multimedia files, documents are created and displayed on the internet. वर्ल्ड वाइड वेब से पहले इंटरनेट मेनली यूज़ किया जाता था टेक्सचुअल मैसेज के लिए, टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन सेंड की जाती थी. लेकिन जब 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब पॉपुलर हुआ, लॉन्च हुआ, इंटरनेट से ग्राफिक्स का वर्क किया जाने लगा. इंटरनेट बहुत पॉपुलर हो गया. इसके बाद में इट इज़ ऑल्सो अफेक्शनेटली कॉल्ड द वेब. Right now, the most important question in exam may be difference between www and internet. स्टूडेंट्स मोस्टली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि www और इंटरनेट दोनों में डिफरेंस क्या है. तो लेट मी क्लियर दिस. Most people think that www is internet and vice versa, which is not true. A large part of the internet is world wide web. यानी कि हम कह सकते हैं www एक इंटरनेट का पार्ट है. This is made up of websites that have one or more web pages. This is the part of the internet that you probably use most of the time. But the internet is not just the web pages that you are using every day. It also consists of other components like forums, Usenet, etc. इंटरनेट तो एक ऐसे एक वर्ल्ड वाइड इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड कनेक्शन है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है बहुत बड़ा, जिसमें सारी सर्विसेज दी जाती हैं, चाहे वो यूज़नेट हो, फोरम्स हो या फिर आपका कोई अदर सर्विस हो. वर्ल्ड वाइड वेब उसका एक पार्ट है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट लाइक फोरम्स. फोरम्स क्या होता है? फोरम्स वर द पीपल where the people can seek help and advice about a topic. फोरम्स पे डिस्कशन कर सकते हैं, जिनको हेल्प चाहिए हेल्प ले सकते हैं. ये वो ग्रुप होते हैं जहाँ से कोई भी आदमी कनेक्ट होकर हेल्प ले सकता है. रिसर्च नेट डेटाबेसेस आर ऑल्सो यूज्ड बाय यूनिवर्सिटीज एंड लार्ज कंपनीज. यूजनेट, these are the discussion groups about a specific subject from the latest favorite pets. For example, Google groups. Email and instant messaging systems are also available in the internet. Telnet, it is a remote access protocol. Gopher, this is a text or menu driven interface.
FTP is a file transfer protocol. These are the different parts of the internet. यहाँ पर आप फिगर में देखेंगे कि www और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है। इंटरनेट के अंदर सभी चीज़ें आ जाती हैं, FTP, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, एंड P2P, पॉइंट टू पॉइंट, चैट, इंस्टेंट मैसेजिंग, गोफर, टेलनेट, ये सभी इसकी इंटरनेट के अंदर सर्विसेज हैं। इंटरनेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर। www इज़ अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। ये आप उसको नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं। स्पेशल लिंक्स इन www आर कॉल्ड हाइपर लिंक्स। फॉर्म्स, www forms a large part of the internet but it is not the internet. अब मैं कुछ इंटरनेट की टर्म्स को डिस्कशन करूंगा आपसे। इंटरनेट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, जैसे URL क्या होता है, ये वेब एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है वेब पेज का इंटरनेट पर। ब्लॉग के बारे में आपको बता चुका हूँ। शॉर्ट फॉर वेबलॉग। ब्लॉग इज़ अ वेब पेज दैट सर्व्स एज पब्लिकली एक्सेसिबल पर्सनल जर्नल फॉर एन इंडिविजुअल। A blog is a frequently updated online personal journal or diary. It is also called digital diary or mini website. Students, right now I will discuss about the different connection types. अगर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी करवानी है तो 3 मेथड्स हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के, इंटरनेट कनेक्शन के। या तो आप डायल अप चूज़ करेंगे या ब्रॉडबैंड या वायरलेस। सबसे पहला है डायल अप। डायल अप एक इनएक्सपेंसिव मेथड है जो कि अब एनीवेयर अवेलेबल है, विच कैन कनेक्ट यूजिंग अ सेल फोन एंड अ सेल फोन मोडेम। ब्रॉडबैंड फास्टर मीडियम है, जिस डायल अप से फास्ट होता है। ये हमेशा ऑन रहता है। ब्रॉडबैंड डेडिकेटेड कनेक्शन है, आपको कनेक्ट नहीं करना पड़ता बार बार। वायरलेस कनेक्शन आप सबको पता ही होगा, लेस एक्सपेंसिव होता है, तो कम खर्चीला होता है इसको सेट करना। नो लिमिटेड टू वन फिक्स्ड लोकेशन, इसका कोई लोकेशन फिक्स नहीं होती है, ये वायर के बिना काम करता है। सिंपली कनेक्टिविटी होती है, बड़े आराम से कनेक्शन हो जाता है। इससे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर। इट इज़ आइडियल फॉर लोकेशंस हैविंग मैनी फिजिकल बैरियर्स लाइक थिक वॉल्स। आप कुछ लिमिटेशंस बता रहा हूँ उनके बारे में। डायल अप की लिमिटेशंस क्या हैं? डायल अप कनेक्शन स्लोअर होता है ब्रॉडबैंड से, इसके अंदर लोकल फ़ोन चार्जेज लग जाते हैं, इसमें 2 लाइन्स की ज़रूरत पड़ती है जिसमें कि फ़ोन कॉल हो सके ऑनलाइन। जबकि ब्रॉडबैंड कनेक्शन थोड़ा एक्सपेंसिव होता है लेकिन डायल अप से बेटर है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन हर एरिया में अवेलेबल नहीं हो सकता, कुछ जगह पर वायरलेस ही लग सकता है। वायरलेस कनेक्शन में एक ड्रॉबैक है, वायरलेस कनेक्शन में कभी भी सिक्योरिटी अटैक हो सकता है, कोई भी सिक्योरिटी हैक कर लेता है। इसमें सिक्योरिटी मैकेनिज्म बहुत शॉर्ट होता है, लिमिटेड होता है।